وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وہ وہی ذات ہے جس نے باغات اگائے، ایک وہ جن کی بیلیں چڑھائی جاتی ہیں اور وہ دوسرے وہ درخت جو خود اپنے تنے پر کھڑے ہوتے ہیں ان کی بیلیں نہیں چڑھائی جاتی، اور کھجور اور کھیتی جن کے ذائقے مختلف ہیں، زیتون اور انار جو کہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتے ہیں، ان کا پھل کھاؤ جب وہ پھل لائیں اور ان کا حق دے دو ان کی کٹائی کے دن، اور حد سے نہ بڑھ جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف نباتات کا ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ تم ان کے پھل کھاؤ جب وہ پھل لائیں اور ان کا حق ان کی کٹائی کے دن دے دو۔ پیداوار کی جو زکوٰۃ ہے وہ جب ہی فصل کٹے اس وقت ادا ہوتی ہے۔ عام جو زکوٰۃ ہے وہ سال میں 1 مرتبہ ہے اور 2.5% کی حیثیت 2.5% کے ریشو سے لاگو ہوتی ہے، جبکہ جو کھیتی کی زکوٰۃ ہے جب بھی فصل پکے کٹ جائے گی تو تبھی اس کی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ سال میں 2 فصلیں ہوں یا 3 فصلیں ہوں، ہر فصل جب کٹے گی تو اس کا حق ادا کرنا ہوگا اس کی کٹائی کے دن، اور اس کی جو ریشو ہے 10% ہے، اسی کو عشر کہتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی فصل ایسی ہو کہ جس کو پانی مصنوعی ذرائع سے دیا جا رہا ہو، مثلا ٹیوب ویل کے ذریعے، نہری نظام کے ذریعے، تو پھر اس کی ریشو جو ہے نصف عشر یا 5% ہوگی۔ پہلی صورت میں جب زمین بھی اللہ کی پانی بھی اللہ کا، 10% حصہ، اسی کو عشر کہتے ہیں۔ عشر کا معنی بھی 10واں حصہ ہوتا ہے، اور اگر زمین اللہ کی پانی انسان نے خود مہیا کیا تو پھر آدھا عشر۔ اپنی کھیتی پکے گی، جتنی دفعہ فصل کٹے گی اتنی دفعہ یہ زکوٰۃ دینی ہوگی، اور حد سے نہ بڑھ جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتی چلوں، فصل جب تک 5 وسق تک نہ ہوگی تو تب تک زکوٰۃ نہ ہوگی۔ 5 وسق سے مراد 20 من ہے، کیونکہ ایک وسق 4 من کا ہوتا ہے، یا تو 20 من کی یا 948 کلو گرام تک
जब तक फसल ना हो तब तक ज़कात नहीं होगी। मसलन घर में अगर आपने कोई चीज उगा रखी है तो जब तक पैदावार 20 मन तक हो ना जाए तब तक फसल की ज़कात नहीं होती। और जानवरों में से बाज बार बर्दारी के काम आते हैं, बोझ उठाने वाले हैं, और बाज रेंगने वाले हैं। खाओ उसमें से जो तुम्हें अल्लाह ताला ने रिज़्क दिया। शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, वो तुम्हारे लिए खुला दुश्मन है। 8 जोड़े हैं, भेड़ के 2, बकरी के 2। कह लीजिए क्या अल्लाह ताला ने दोनों नर हराम किए हैं या दोनों मादा, या वो बच्चे जो उन मादाओं के पेट में होते हैं? हमने पिछली आयत में पढ़ा था, कुफारे मक्का ने ये करार दे दिया हुआ था कि फला जानवर हमारे मर्दों के लिए तो जायज हैं और फला जानवर हमारे औरतों के लिए नाजायज हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, जरा बताओ तो सही, अल्लाह ताला ने क्या इन जानवरों के दोनों नर हराम किए हैं या मादा अल्लाह ने हराम की हैं, या जो इन मादाओं के पेट में बच्चे पैदा होंगे वो अल्लाह ने हराम किए हैं? अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इल्म की कोई बात बताओ। नीस ऊंट की जिन्स से 2 और गाय के 2 जोड़े हैं। 8 जानवर हैं, भेड़ में से 2 नर और मादा, बकरी में से 2 नर और मादा, ऊंट में से 2 नर और मादा, गाय में से 2 नर और मादा। ये 8 मवेशी जानवर हैं जिनको जो इंसान के लिए हलाल किए गए हैं। आप इनसे पूछिए कि क्या अल्लाह ताला ने इन दोनों के नर को हराम किया है या इन दोनों की मादा को हराम किया है, या वो बच्चे जो इन मादाओं के पेट में होते हैं? जब अल्लाह ताला ने ऐसा हुक्म दिया था तो क्या तुम उस वक्त मौजूद थे? तंजन कहा जा रहा है कि तुमने जो ऐसे अहकामात बना रखे हैं, क्या तुम उस वक्त सुन रहे थे जब अल्लाह ताला कह रहा था कि इन मादाओं के पेट में जो है वो मर्दों के लिए तो जायज होगा और औरतों के लिए हराम होगा? हकीकत ये है कि उस शख्स से ज्यादा जालिम कोई नहीं जो अल्लाह पे झूठ गढ़े। ये सब अल्लाह पे झूठ गढ़े गए हैं ताकि वो लोगों को इल्म के बगैर गुमराह करे। अल्लाह ताला तो ऐसी जालिम कौम को कभी हिदायत नहीं देता। ए नबी फरमा दीजिए, मैं जो मेरी तरफ वही की गई है मैं उसमें नहीं पाता किसी भी चीज को हराम जो किसी खाने वाले पर हराम हो, सिर्फ इस सूरत में कि वो मुर्दार हो या बहता हुआ खून हो या खिंजीर का गोश्त हो, तो बेशक ये नापाक हैं। मुर्दार की सूरत में हम पीछे पड़ चुके हैं, जो गला गूंद कर मर जाए, जो बुलंदी से गिर कर मर जाए, जो जख्म लग कर मर जाए, या जिसको दरिंदे खा ले, ये सारे अगर मर जाएं तो ये मैता के ज़िमन में ही आते हैं। हाँ, अगर ये जिंदा हो और तुम उन्हें ज़िबा कर लो तो तुम इन्हें खा सकते हो, क्योंकि अब वो ज़िबा होने के बाद पाक हो गए। लेकिन अगर इसी तरह मर जाएं तो ये मुर्दार ही के ज़िमन में आएंगे और हराम होंगे। खून कौन सा हराम है? जो बहता हुआ हो, लेकिन जो खून बोटियों के साथ या हड्डियों के साथ लगा हो, जैसे हमारे पास मुर्गी आती है उसमें खून लगा होता है, वो खून हमारे लिए जायज है। जो बहता हुआ खून था, जो बह के चला गया, वो खून हराम होता है। इसी तरह खंजीर का गोश्त हराम है क्योंकि वो नापाक है, और वो जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और चीज का नाम लिया गया हो, खा किसी पीर का, किसी पैगंबर का, किसी नबी का, किसी वली का, वो चीज भी ऐसे ही हराम होती है जैसे खंजीर हराम होता है। अल्लाह ने बड़ी हिकमत के साथ खंजीर के बाद ये लफ्ज अल्लाह ताला लाए हैं कि जिस पर अल्लाह के सिवा किसी भी और का नाम लिया गया हो, अल्लाह के सिवा हो, वो कोई भी हो। और जो शख्स बेकरार हो जाए, वो सरकशी करने वाला ना हो और दोबारा करने वाला ना हो, तो अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। और यहूदियों पर हमने हर नाखून वाला जानवर हराम कर दिया था, और गाय में से और भेड़ में से हमने उनके ऊपर उनकी चर्बियां हराम कर दी थी, मगर जो उनकी पुश्तों के साथ लगी होती थी, या जो उनकी अंतड़ियों के साथ होती थी, या जो हड्डी के साथ चर्बी मिल जाती थी, ऐसी चर्बी जायज थी। ये हमने उनको उनकी सरकशी का बदला दिया था। और बेशक हम तो सच्चे हैं। असल बात यह है कि यहूदियों को अल्लाह ताला ने उनकी सरकशी की सजा के तौर पर बस ऐसी चीजें जो असलन हलाल थी उन पर हराम कर दी। मसलन हर नाखून वाला जानवर जिसकी उंगलियां फटी हुई ना हो, इकट्ठे ही हो,
जैसे बतख, शुतुरमुर्ग या हर खुर वाला जानवर, ये यहूद पर हराम कर दिया गया था। हालांकि ये जानवर असलन हलाल हैं और बाद में हलाल भी कर दिए गए। इसके अलावा गाय और बकरी की चर्बी भी उन पर हराम कर दी गई। इस सूरत में उन पर जायज थी कि अगर वो हड्डियों के साथ मिली हो या अंतड़ियों के साथ मिली हो या ये जो पिछली हड्डी है, ये जो रीढ़ की है, बैकबोन होती है, इसके साथ मिली हुई हो, ये उनके लिए जायज थी। खालिस चर्बी उनके लिए हराम कर दी गई थी। ये हमने उनको उनकी सरकशी की सजा दी थी और हम सच्चे हैं। और अगर वो तुझे जुठलाएं तो कह दो तुम्हारा रब तो बड़ी वसी रहमत वाला है, लेकिन याद रखना उसका अजाब यहूद जैसी मुजरिम कौम से टाला नहीं जा सकता। इसीलिए यहूद जो है मबगूज अलह कौम है, मगजूब अलह कौम है, जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। अल्लाह का अजाब मुजरिम कौम से टाला नहीं जा सकता। जल्दी वो लोग कहेंगे जिन्होंने शिरक किया, अगर अल्लाह चाहता तो ना तो हम शिरक करते और ना हमारे आबा अजदाद शिरक करते और ना हम किसी चीज को हराम ठहराते। असल में इंसान की आदत होती है कि वो अपनी बुराई खुद तस्लीम नहीं करता, हमेशा किस्मत के मत्थे मार देता है। हम में से भी जो लोग नेक नहीं होते, उनका कहना पता है क्या होता है? मेरी किस्मत में होता तो मैं भी नमाजी हो जाता, मेरी किस्मत में होता तो मैं भी नेक होता, मेरी किस्मत में ही नहीं था। हालांकि ये चीजें इंसान के अपनी कोशिश और अपनी अमल का नतीजा होती हैं। तो मुशरिकों ने भी यही बात कही कि अगर अल्लाह चाहता तो हम शिरक ना करते और हमारे बाबा अजदाद शिरक ना करते और हम किसी चीज को हराम ना करते। इसी तरह उन लोगों ने भी झूठ बोला था जो इनसे पहले थे, यहां तक कि उन्होंने हमारे अजाब का मजा चख लिया। ए नबी, इनसे कह दो तुम्हारे पास कोई इल्म है तो उसको हमारे लिए निकालो, हमारे सामने पेश करो। तुम तो सिर्फ जन की पैरवी करते हो और तुम तो सिर्फ बिला दलील बातें करते हो। तुम अपने इन मुशरिकाना रस्म और रिवाज के लिए कोई दलील हमें दिखाओ तो सही। कह दीजिए अल्लाह के लिए ही पूरी हुज्जत बालिगा है, अगर वो चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुनिया को आजमाइश की जगह बनाया, लिहाजा हर बंदा जो है उसको अल्लाह का पैगाम तो पहुंचा दिया गया, लेकिन उसको इख्तियार भी दे दिया गया। चाहो तो कबूल कर लो, चाहो कबूल न करो। कबूल करोगे तो जन्नत और कबूल न करोगे तो दोज़ख तुम्हारा हक होगी। कह दीजिए अपने गवाहों को बुलाओ तो सही जो ये गवाही दें कि अल्लाह ताला ने इन जानवरों को हराम किया था। किन जानवरों को? जिनको ये कुफारे मक्का हराम करते थे। और अगर वो गवाही दे दें तो ए नबी आप उनके साथ कभी ना गवाही दीजिएगा और उन लोगों की ख्वाहिशों की पैरवी न कीजिएगा जिन्होंने हमारी आयत को झुठला दिया और वो लोग आखिरत पर भी ईमान नहीं लाते और वो लोग अपने रब के साथ शरीक करते हैं। असल में हलाल और हराम के इख्तियारात सिर्फ अल्लाह के पास हैं और जो शख्स हलाल और हराम खुद तय कर ले उसने अपने आप को अल्लाह का शरीक बना लिया। कह दीजिए आओ मैं पढ़ूं जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम किया है, ये कि तुम अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक नहीं करोगे। शिरक का बार बार हम पहले भी जिक्र पढ़ चुके हैं। और तुम वालिदैन के साथ नेकी करोगे और तुम अपनी औलादों को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करोगे। हम तुम्हें रिज़्क देते हैं और उनको भी। मैंने अभी आपको बताया था कि कुफारे मक्का औलाद को 3 वजहों से कत्ल करते थे। बेटियों को इसलिए कि दामादों के सामने झुकना न पड़े, बेटों और बेटों दोनों को इस वजह से कि उन्हें खिलाना ना पड़े, और तीसरी वजह ये थी बुतों के नाम पे मन्नतें मानने से। तो वो जो दूसरी वजह है मुफलिसी की वजह से औलाद को कत्ल ना करो, ये आज हम मुसलमानों के अंदर भी बड़ी आम है। और खैर से हमारी हुकूमत ने इसके लिए बड़े दिल फरेब नारे रखे हुए हैं। 2 बच्चे खुशहाल घराना। हालांकि अल्लाह ताला आपसे कह रहे हैं हम तुम्हें भी रिज़्क देते हैं और उनको भी रिज़्क देते हैं। क्या ख्याल है अपने रिज़्क के जिम्मेदार आप खुद हैं जो औलाद की रिज़्क के जिम्मेदार आप बन रहे हैं? अल्लाह ताला ये अकीदा जो है ये शिरकिया अकीदा है। शरीयत ने इसकी कतन इजाजत नहीं दी। किस वजह से? असल बात यह है आप अल्लाह ताला पर
एतमाद नहीं कर रहे, आपको अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है। आप अल्लाह ताला को इनडायरेक्ट ये कहते हैं कि अल्लाह अपनी मखलूक को पैदा तो करता है लेकिन उसकी रिज़्क़ के इंतजामात नहीं कर सकता। असलन आप अल्लाह को ये कह रहे होते हैं। तो अपनी औलादों को मुफलसी के डर से कत्ल न करो, हम तुम्हें रिज़्क़ देते हैं और उनको भी, और बेहयाई के करीब भी ना जाओ जो जाहिर हो या बातिन हो। ऐसे वसाइल भी इख्तियार न करो जो तुम्हें बेहयाई के कामों के करीब ले जाएं और इंसान के जिनसी जज्बात में तहरीक पैदा करें, जैसे बेहिजाबी, गैर महरम औरतों की तरफ देखना, सिनेमा टीवी देखना, जिनसी लिटरेचर का मुतालिया करना, औरतों की तस्वीर की आम नशर शात, सब कुछ इसी ज़िमन में आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आंखों का जना देखना है, कानों का जना फहाशी की बातें सुनना है, जबान का जना फहाशी की बातचीत करना है, हाथ का जना पकड़ना है, पाँव का जना चलना है, दिल का जना उसकी ख्वाहिश और तमन्ना करना है। और फिर शर्मगाह या तो इन चीजों की तस्दीक कर देती है या तकजीब कर देती है। मुस्लिम की हदीस है। और आज हैरत होती है, औरत की तस्वीर हर जगह पे होती है, यहाँ तक कि ट्रैक्टर भी औरत की तस्वीर के बगैर नहीं बिकता। आज ये सारी चीजें जो जिनकी नशरो अशात होती है, कुरान मजीद की खुली खुली नाफरमानी है। और बेहयाई के करीब भी ना जाओ जो जाहिर हो और जो छुपी हुई हो। ऐसी जान को कत्ल न करो जिसको अल्लाह ताला ने हराम किया हो। हाँ, हक के साथ कत्ल कर सकते हो, जैसे कसास ले सकते हो। इन बातों की अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है ताकि तुम अकल करो। यतीम के माल के करीब भी ना जाओ। हाँ, उस तरीके से जा सकते हो जो अच्छा हो, यहाँ तक कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाए, और जब वो जवानी को पहुंच जाए तो उसका माल उसके हवाले कर दो। ये तमाम अहकामात हम सूरा निसा के पहले रुकू में पढ़ चुके हैं। और नाप और तौल को इंसाफ के साथ पूरा करो। नाप और तौल में कमी बेशी के जरिए दूसरों का माल खाना इतना बड़ा जुर्म है कि इसके लिए कुरान ने दोज़ख की सजा रखी है। एक पूरी सूरत है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, उन कम तोलने वालों के लिए दोज़ख है, जो जब खुद तो तोलते हैं तो पूरा मांगते हैं, लेकिन जब दूसरों को देते हैं तो कम देते हैं। इसी तरह कौम शुएब को जो अजाब दिया गया था, उनका जुर्म सिर्फ यही था कि वो माप और तोल में कमी करते थे। तो माप और तोल में कमी करने वालों के लिए दोज़ख की सजा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुद बताई है। हम किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते। और जब तुम बात करो तो इंसाफ की बात करो, अगर ते रिश्तेदार के खिलाफ ही क्यों ना हो, और अल्लाह के वादे को पूरा करो। इन बातों की अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। ये कुल 9 अहकामात हैं जो अल्लाह ताला ने इस आयत में दे दिए, और पूरी एक लिस्ट आपको बता दी हलाल और हराम की। ये चीजें हलाल हैं और ये चीजें हराम हैं। हलाल काम तुम्हें करने हैं और हराम कामों से तुम्हें बचना है। और ये मेरा सीधा रास्ता है, इसकी पैरवी करो, और दूसरे रास्तों की पैरवी न करो तो तुम्हें वो अल्लाह के रास्ते से जुदा कर देंगी, दूर कर देंगी। अल्लाह ताला तुम्हें इन्हीं बातों की नसीहत करता है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। फिर हमने मूसा को किताब दी जो कि नेक रवश इख्तियार करने वाले के लिए मुकम्मिल थी, और उसमें हर बात की तफसील भी थी। ये किताब हदायत और रहमत थी। ये कौन सी किताब थी? तौरात। और ये किताब इसलिए नाजिल की गई थी ताकि लोग अपने रब से मुलाकात यानी क़यामत पर ईमान ले आए। और ये किताब कुरान मजीद हमने इसको नाजिल किया है, ये बरकत वाली है। अब इसकी पैरवी करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ऐसा न हो कि तुम ये कहो कि हमसे पहले 2 गिरोह यानी यहूद और नसारा पर हमसे कबल किताब नाजिल की गई थी और हम तो उसके पढ़ने पढ़ाने से बेखबर ही रहे। तो लिहाजा इसलिए अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ कुरान नाजिल कर दिया है और बार बार तुम्हें उसको उस पर ईमान लाने की दावत भी देता है। या तुम ये कहो कि अगर वो किताब यानी कुरान मजीद हम पर नाजिल होती, हमसे मुराद हम अहले किताब पर नाजिल होती, तो हम मक्के के लोगों से ज्यादा हदायत याफ्ता होते।
تو तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह निशानी आ चुकी, हदायत आ चुकी, रहमत आ चुकी, तो उस शख्स से ज्यादा जालिम कौन है जो अल्लाह की आयत को झुठलाए और उनसे मुंह मोड़ ले। अनकरीब हम उन लोगों को जो हमारी आयत से मुंह मोड़ते हैं बुरे अजाब की सजा देंगे, इस वजह से जो वो हमारी आयत से मुंह मोड़ते थे। क्या वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनके पास फरिश्ते आ जाएं, या तेरा रब आ जाए, या तेरे रब की बाज निशानियां आ जाए। आपको पता है फरिश्ते तब आते हैं जब मौत का वक्त होता है या अजाब का वक्त होता है, और रब के फैसले भी जब आएंगे उसके बाद भी अमल करने की कोई मोहलत बाकी नहीं रहेगी। जिस दिन तेरे रब की बाज निशानियां आ गई, किसी शख्स को उसका ईमान नफा न देगा जो इससे कबल ईमान न लाई थी या उसने अपने ईमान में कोई खैर नहीं कमाई थी। जब अल्लाह की कोई निशानी आ जाए तो फिर इंसान को उस वक़्त का ईमान फायदा नहीं देता। उस वक़्त कौन किसको ईमान फायदा देता है? जिसने उस निशानी के आने से कबल न सिर्फ ईमान कबूल किया था बल्कि अपने ईमान के अंदर नेकियां भी कर ली थी। कह दीजिए इंतजार करो, हम भी इंतजार करने वाले हैं, और उस निशानी के आने से कबल, उस अजाब के आने से कबल ईमान ले आओ। बेशक वो लोग जिन्होंने अपने दीन को फिरकों में बदल डाला, तो फरकाबाजी कर डाली अपने दीन में, और वो गिरोह गिरोह हो जाए, ए नबी आपका उनसे इतना सा भी ताल्लुक नहीं है। तफरकाबाजी बहुत बड़ी लानत है, ये शैतान का धोखा है, उसकी साजिश है। कुरान मजीद में एक और जगह पर तफरकाबाजी को शिरक करार दे दिया गया है। यहाँ ये कहा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तफरकाबाजी करने वालों से कुछ भी 0% भी ताल्लुक नहीं है। उनका मामला तो अल्लाह की तरफ है, फिर उन्हें अल्लाह ताला खबर देगा जो वो अमल करते थे। जो नेकी लेकर आएगा उसके लिए 10 गुना सवाब है, और जो बुराई लेकर आएगा तो उसको उतना ही बदला दिया जाएगा और वो जुल्म न किए जाएंगे। ये सवाब 10 गुना से लेके 700 गुना, बल्कि इससे भी ज्यादा अल्लाह चाहे तो बढ़ा देते हैं। लेकिन बुराई का बदला सिर्फ एक बुराई है, बल्कि मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, अगर किसी शख्स ने बुराई का इरादा कर लिया और फिर उस पर अमल न किया तो तब भी एक नेकी का सवाब मिल जाता है। बुराई के इरादे पर बुराई का गुनाह नहीं लिखा जाता, बल्कि फरिश्ते को हुक्म होता है इंतजार करो, और अगर वो बुराई नहीं करता तो फिर एक नेकी उल्टा उसके हिसाब में लिख दी जाती है कि उसने बुराई का इरादा करने के बावजूद वो बुराई ना की। ए नबी फरमा दीजिए, बेशक मुझे मेरे रब ने सीधे रास्ते की हिदायत दी है। ये सीधा रास्ता हजरत इब्राहिम का दीन है, जो कि यकरुखे थे और वो मुशरिक ना थे। हजरत इब्राहिम के दीन की सबसे बड़ी खसूसियत क्या है कि हजरत इब्राहिम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वाले थे। शिरक का कोई शायबा उनके दीन में मौजूद नहीं। कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ये बात मैं आपको बार बार वाज़े करती हूँ। एक मोमिन का जिंदगी का हर अमल अल्लाह की खातिर होना चाहिए। आपका खाना पीना, आपका सोना जागना, आपका कारोबार करना, आपके घर के काम करना, आपका औलाद से मोहब्बत करना, आपके रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात रखना, इन सब का कि में आपकी नीयत क्या होनी चाहिए? अल्लाह की खातिर। अगर आपने ये काम दुनिया की खातिर किए तो याद रखिए आखिरत में आपके लिए आग के सिवा और कुछ नहीं है। एक मुसलमान की जिंदगी अव्वल से आखिर, पैदाइश से मौत तक किसके लिए होती है? अल्लाह के लिए। किसके लिए होती है? बोले अल्लाह के लिए, आखिरत के लिए। दुनिया उसका मरकज़ो महवर नहीं होती, दुनिया उसका टारगेट ऑफ लाइफ नहीं होती। जब दुनिया टारगेट ऑफ लाइफ हो, आप औलाद दुनिया के लिए पाल रहे हो, आप रिश्तेदारियां दुनिया के लिए कर रहे हो, आप घर दुनिया के लिए बना रहे हो, तो आखिरत में आग के सिवा और कुछ नहीं है। तो इंसान की जिंदगी क्या है? मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। क्यों जी? नियत कर ले,
آج سے میری زندگی کا ہر لمحہ کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے ہوگا. میں بچوں کو پالوں گی اللہ کے لیے، میں کھانا بناؤں گی اللہ کے لیے. اللہ کہیں ناراض تو نہیں ہو رہا اس سے؟ کہیں میں حرام اور حلال کی پہچان کیے بغیر تو نہیں چل رہی؟ میں رشتہ داروں سے مل رہی ہوں اللہ کے لیے. میری زندگی کا ہر قدم اور میرے زندگی کی ہر حرکت صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہوگی. اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا فرما برداری کرنے والوں میں سے ہوں. اے نبی فرما دیجیے، کیا میں اللہ کے سوا کوئی رب تلاش کر لوں؟ حالانکہ وہ ہر شے کا رب ہے. کوئی جان جو بھی کمائے گی اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور کوئی شخص کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ کبھی بھی نہ اٹھائے گا. پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹ جانا ہے، وہ تمہیں خبر دے گا جو تم اختلاف کرتے تھے. اور وہ اللہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور ایک کو تمہارے اوپر درجوں میں بلند کر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس میں جو اس نے تمہیں دیا ہے. آج ہم اس زمین کے وارث ہیں. اب ہم مر جائیں گے، ہماری نسلیں وارث ہوں گی. جیسے ہم سے پہلے ہمارے ابا اجداد اس زمین کے وارث تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کا وارث بنایا ہے. ہم دنیا میں جو کریں گے اسی کا ہی ہم نے آخرت میں انجام دیکھ لینا ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین کا جانشین بنایا ہے، زمین کا وارث بنایا ہے، ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم اس میں اپنی عرصہ وراثت میں ہم کیا یہاں پہ بلائی چھوڑ کے جاتے ہیں یا برائی چھوڑ کے جاتے ہیں. ہم اللہ کے ہاں پوچھے جائیں گے کہ تم نے اپنے زمانہ وراثت میں زمین میں کیا بلائیوں کی کاشت کی تھی کہ برائیوں کی کاشت کی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے جو ایک دوسرے کو درجوں میں کم و بیش بنایا ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر، کوئی بیمار ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی عقل مند ہے، کوئی بے وقوف ہے، تو یہ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کرے. کبھی اللہ دے کے آزما رہا ہوتا ہے، کبھی اللہ لے کر آزما رہا ہوتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دے کر آزمایا، کبھی اولاد نہ دے کر آزمایا، کبھی صحت دے کر آزمایا، کبھی صحت نہ دے کر آزمایا. دونوں کی آزمائشوں کے تقاضے فرق ہیں دونوں آزمائش. مال بہت بڑی آزمائش ہے، جبکہ بعض دفعہ مال نہ دے کر غربت کے ساتھ بھی آزمائش ہوتی ہے. تو دونوں کے تقاضے فرق ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ کیا انسان نے جس حال میں نے اسے رکھا تھا اس کے تقاضے پورے کیے تھے یا نہیں کیے تھے. اللہ تعالیٰ جلد عذاب دینے والا ہے. یاد رکھو، یہ دنیا کی جو مہلت ہمیں ملی ہے یہ بڑی تھوڑی سی ہے. اللہ تعالیٰ نے جلد حساب لے لینا ہے، اور بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا بھی ہے. تو یہ ہماری سورۃ انعام جو ہے یہ مکمل ہو گئی. اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح